What if you knew about some of the most common regrets that people have just before they die? Would you start living your life differently? Let's stop this talk and jump into the list of regrets that people have before they died, coming straight from the person who heard them firsthand, and that's Bronnie Ware. Hi everyone, welcome back to Richard's BookTube. I hope you all are doing amazing. So, in today's video, we are diving into the world of regrets because we are reviewing the book the top 5 regrets of dying by Bronnie Ware. So first thing first about Bronnie Ware. So जो Bronnie Ware है, she is an Australian author who also has been a palliative care nurse जिन्होंने अपने बहुत सारे ईयर्स बिताए हैं उन लोगों के साथ जो अपने फाइनल डेज में थे. सो आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा रिग्रेट्स पता हैं जो उन लोगों को थे जब वो अपनी डाइंग स्टेज पे थे. सो वही सब जो रिग्रेट्स हैं उन्होंने अपनी इस बुक में लिखे हैं जो हम आज रिव्यू करने वाले हैं, द 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग. सो द फर्स्ट रिग्रेट दैट ब्रॉनी मैम शेयर्ड इन दिस बुक वाज, I wish I would had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. This was the regret that patient had during her last days. मतलब उनको ये realization हुआ कि उन्होंने पूरी लाइफ दूसरों के टर्म्स पर जी, उन्होंने पूरी लाइफ अपने टर्म्स पर कभी जी ही नहीं. और ये realization उन्हें हो रहा है कि काश मैं अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी पाती, ना कि वैसे जैसे लोग चाहते थे. सो वो जो पेशेंट है वो ब्रॉनी मैम को एक बात कहती हैं वाई शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर. तो वो होती है, डोंट यू एवर लेट एनीवन स्टॉप यू डूइंग व्हाट यू वांट ब्रॉनी, शी सेड. वो उनसे एक प्रॉमिस लेती हैं कि ब्रॉनी कभी भी तुम किसी को इतना राइट मत देना ये बताने का कि तुम्हें क्या करना चाहिए. ऑलवेज लीव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, शी सेड टू हर इन हर लास्ट डेज. कैन यू इमेजिन वो कितने अंदर से इमोशन से भरी हुई होंगी कि वो दूसरे को ये एडवाइस दे रही है कि लीव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, डोंट लेट anyone tell you what to do and how to do. One more thing she said to Bronnie, and it is, live true to your own heart, darling. Don't ever worry what others think. Promise me, Bronnie. Her voice now a barely audible whisper. वो उन्हें कहती है कि हमेशा जो तुम्हारे हार्ट को अच्छा लगे वो करो. वो कहती हैं कि कभी ये मत सोचो कि दूसरे क्या सोचेंगे. Don't ever think about what others will think. Don't ever worry about this thing. The second most common regret that people had during their last days was, I wish I hadn't worked so hard. ये आप सोचते हो ये कितना बड़ा रिग्रेट है, क्योंकि जो आज की ज़िंदगी चल रही है, जैसे हम लोग इतने काम में उलझे हुए हैं, इतनी चीज़ों में उलझे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, हमें कहीं पहुंचना है, हमें कहीं पहुंचना है, विदाउट ये रियलाइज़ किए कि प्रेजेंट मोमेंट कितना इंपॉर्टेंट है. हम क्यों नहीं इसको जी रहे, हम क्यों नहीं इसको एंजॉय कर रहे हैं. हम लगे हुए हैं अपने 9 to 5 जॉब्स, 10 to 7 जॉब्स, लगे हुए हैं उधर जाने में, उधर अपना 100% देने में, just to create a delusional life we had in our heads, just to create that, just to build that life. So there was this patient named John who gave Bronnie ma'am a piece of advice, and it was this: if I can tell you one thing about life, Bronnie, it's this: don't create a life where you are going to regret working too hard. I didn't know I was going to regret it until now, when I'm facing the very end. But deep in my heart, I knew I was working too hard. Not just for Margaret, but for me too. I would love to have not cared what others thought of me as I do now. I wonder why we have to wait until we are dying to work things like this out. Shaking his head, he kept talking. There is nothing wrong with loving your work and wanting to apply yourself to it. But there is so much more to life. Balance is what is important. Maintaining balance. So he gave her this advice कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. आप सब कुछ अपने वर्क को नहीं दे सकते. यू कांट गिव योर होल लाइफ टू वर्क बिकॉज यू विल रिग्रेट इट इन द एंड. यू विल रिग्रेट कि काश मैंने थोड़ा सा काम से वक्त निकाल कर लाइफ को एंजॉय किया होता, अपने लोगों के साथ बैठा होता, उनके साथ बातें की होती, उनके साथ हंसता, तो शायद मेरी लाइफ और ज़्यादा अच्छी होती और मुझे ये शायद रिग्रेट नहीं होता लास्ट में. सो द थर्ड रिग्रेट दैट पीपल हैड वाज, I wish I would had the courage to express my feelings. हमने ये लोगों को बहुत बार बोलते सुना है कि हम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम लोगों को बता नहीं पाते कि हम क्या फील कर रहे हैं उनके लिए, या कुछ किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते जब वो कुछ अच्छा करते हैं. ये बहुत कॉमन थिंग है. बट एट द एंड जब तुम्हें ये रियलाइज होता है कि काश मैंने उस
पर्सन को वो कह दिया होता जो मैं कहना चाहती थी या चाहता था, तो वो एक रिग्रेट रह जाता है लाइफ में। सो ऑलवेज एक्सप्रेस, वो यही इस रिग्रेट का मतलब है कि ऑलवेज एक्सप्रेस व्हेन यू आर हेयर एंड नाउ। अभी जो भी कहना चाहते हो कह दो, कैसे भी कहना चाहते हो कह दो, ये मत सोचो कि कैसा लगेगा या क्या बोलेंगे, बस कह दो। आई एक्सप्रेस अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, मैं जो भी मेरे अंदर चल रहा है मैं सामने बोल देती हूँ, मेरे फेस पे दिख जाएगा, मैं एक्सप्रेस कर दूंगी किसी ना किसी वे में। इफ इवन आई लाइक समवन आई विल एक्सप्रेस, इवन आई डोंट लाइक समवन आई विल एक्सप्रेस। अगर मुझे कुछ बात कहनी है आई विल से इट ऑन द फेस। आई अप्रिशिएट पीपल अ लॉट, मैं लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। जब भी मुझे कुछ किसी का कोई कंटेंट अच्छा लगता है या कोई फोटो अच्छी लगती है, आई अप्रिशिएट देम ऑलवेज। आई ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट बिकॉज आई बिलीव दैट पीपल नीड दैट अप्रिसिएशन टू गेट गोइंग। उनको आगे बढ़ने के लिए वो अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। सो आई डू इट often, I always do it. So there are people who don't know how to express, उनको लगता है कि वो कैसे एक्सप्रेस करें, उन्हें पता ही नहीं है कि how to express। उन्हें लगता है there is any kind of criteria जिसके थ्रू वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, but there is no criteria guys। आपको एक्सप्रेस करना है जैसा भी, जो भी आप फील करते हो बस सामने वाले को बोल दो, जो भी मन में है बस बोल दो, का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस अपनी अंदर की बात सामने वाले को एक्सप्रेस करो, दैट इज हाउ यू एक्सप्रेस। सो इसी के ऊपर एक जो पेशेंट थे ब्रॉनी मैम के, वो उनको कहती हैं, वी मस्ट लर्न टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स नाउ, not when it is too late. None of us ever know when it will be too late. Tell people you love them, tell them you appreciate them. If they can't accept your honesty or react in a different way to how you hoped, it doesn't matter. What matters is you have told them. What matters कि आपने उन्हें बता दिया कि आप कैसा फील करते हो. Nothing else matter. One of the thing also that patient said, life is over in a flash. She reminded me. Jude was grateful she would had time to say her own goodbyes, but emphasized that not everyone receives the blessing of a time to express these feelings at the end. In fact, millions don't, as they depart suddenly and unexpectedly. So जो ब्रॉनी मैम की पेशेंट है वो उन्हें कह रही हैं कि I got a proper time to say proper goodbyes to my family and friends, but people don't. They don't get the time to say a proper goodbye to their friends and family. इसलिए express yourself in the now moment, in the now, in this moment. Tell your friends, family, loved ones that you love them, you how much you admire them, how much you appreciate what they do for you. So tell them on a daily basis that you love your people. Unko batao, because life is so unexpected. Life has become so fragile, you don't know when your end is near. So tell them, tell your people that you love them. Fourth regret that people had was, आई विश आई वुड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। कितने ऑफन ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड्स के, जो हमारे ट्रू रियल फ्रेंड्स होते हैं, उनके टच में रह पाते हैं लाइफ लॉन्ग तक। वेरी रेयर, बहुत ही कम ऐसे इंस्टांसेस होते हैं जहाँ पर हम अपने फ्रेंड्स के स्टिल क्लोज हैं, जो हमारे बहुत ट्रू और बहुत पुराने दोस्त हैं। नहीं होता, क्योंकि हर एक लाइफ के फेज में हम अपने पुराने दोस्तों को खोते चले जाते हैं और बस कुछ चीज़ों के साथ रह जाती हैं। तो सिर्फ वो यादें होती हैं, जो मोमेंट्स हम लोगों ने साथ बिताए होते हैं, जो हम आगे बढ़ते बढ़ते लोगों को सुनाते रहते हैं कि हमारे दोस्त होते थे और हम उनके साथ ये करते थे, ऐसे रहते थे और ये मस्ती करते थे। बट वो कभी साथ रह नहीं पाते, क्योंकि हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारी लाइफ चेंज होती है और उस चेंज में जो कुछ पीछे छूटता है वो हमारी फ्रेंडशिप्स होती हैं। लास्ट में जब आप अपने डेथ बेड पे होते हो ना, आप सोचते हो उन सब फ्रेंडशिप्स के बारे में, उन ट्रू रियल फ्रेंड्स के बारे में जो आपने कमाए थे लाइफ में, बट नाउ दे हैव लॉस्ट, यू लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद दैम। आपको नहीं पता वो लाइफ में कहाँ हैं, कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। उनको नहीं पता आप कहाँ हो, कैसे और क्या कर रहे हो। वो कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है उस लाइफ में, जब आप आगे बढ़ते गए और अपने फ्रेंड्स को पीछे छोड़ते गए। ये होता है, हम सबके साथ होता है, हमारे फ्रेंड्स हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। सो वन ऑफ द पेशेंट्स ऑफ ब्रॉनी मैम सेड टू हर ऑन फ्रेंडशिप, the beauty of friendship is that these people take us as we are, based on the things we have in common. Friendship is about being accepted for who you are, not as someone else wants you to be, like a partner or family sometimes tries for. We must maintain our friendships, my dear girl. ये वो पेशेंट ब्रॉनी मैम को कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स ही वो लोग होते हैं जो हमको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं। हमारे बीच में क्या कॉमन है, उस बेसिस पे हमारी फ्रेंडशिप्स होती है और वो लास्ट करती हैं बहुत ईयर्स तक, until we lost the contact. So always be in touch with your friends. The fifth regret that Bronnie ma'am shared in this book is,
I won't tell you that. You have to read this book for that. सारी समरी मैं ही बता दूंगी तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कैसे पढ़ोगे, आप लोग क्या कैसे फील करोगे जो मैंने फील किया था इस बुक को पढ़ते हुए. दिस इज सच अ लाइफ चेंजिंग बुक. You should read it. You should definitely read it. Let me clear one thing. This book is not about death. It's about how you can truly live, how you can truly live in the moment, how you can make your life joyful, how you can forget about everything and just live your life. So that's it for this video. But don't forget to tell me in comments which regret hit you the most. Please like, share, and subscribe for more such insightful book reviews and summaries. Bye. You can't control how long you live, but you can control how well you live.